Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. So, yesterday we were discussing about integration. Okay. And today we are discussing about ingestion. Pipeline is still remaining, which we will see in some other session, not today or not uh, in Hadoop 1. We will see it in Hadoop 2. So, this we are not going to do today. However, we will do this today. And we will also see how other things like MapReduce is created, or how does it work, what is pig and what is hive, and blah blah blah, all that. So we will mark Hadoop 1 story will get over today, which means whatever time it took to reach here, your basics are over, which means next Saturday and Sunday your main course begins. Main course actually begins next Saturday and Sunday. Okay, so let's go ahead with, so I'm already logged in here. However, I need a single node cluster. For emergencies, I always keep this ready. Usually, see, we are used to fire a script, okay? However, if I fire a script right now, you will get confused. That's the reason I'm taking an image, because that's how, what is the industry standard right now? What is the industry standard? They also take images, snapshots, AMI. Okay, so I have a client, Windows client stopped. I will start that as well. Perfect. As soon as I get the IP address, see, Windows. Still waiting for the IP. Got it. Okay. Perfect. So let's connect. Okay, the password will be Manchester 1 administrator optional. Okay, own workspace is a better name, but it's okay. Here we are connected. Load. Let me check what is the IP address of this machine. So IP is changed, okay, because we are taking a new machine. That's the reason IP has changed. I should have kept that machine instead of terminating. Perfect. So let's SSH localhost. Okay. Start -all. Okay, so next Saturday, Sunday, we possibly will do, no, we will not do prerequisites. We will do something else. And then later on, we will do prerequisites. But let's finish this all today. So we got the cluster ready. Okay. And since this is a new cluster, we may not have anything on the cluster. ls/. See, we don't have anything here. So that is also absolutely fine. We
We'll remove this file, Hadoop. Okay, and we will open the script, isn't it? Okay. Where is the script? Oh, I am looking for the script actually, so that we can save time. Okay. Perfect. We got the cluster. Now what we'll do is, because there are many DBAs, there are some people, those who are DBAs, database administrators. So they actually know some concept. And some people, see, most of you are not DBAs, I know. You will learn the definition of ETL and ELT. You'll understand today. However, I'm addressing only people, those who know about database, which means they have worked on it, maybe in college, maybe in organization, wherever it is. So what they know is, when we do extraction, then we do transformation, and then we load. So right now we have only done one part, that is extraction. We have not transformed anything, isn't it? Have we transformed anything? No. In the traditional data warehousing architecture, we used to do transformation and then we used to do load. Point clear? But in our architecture, we are doing the load first, and then we are going to do the transformation. Load first, and then we are going to do transformation. So what we'll do is, for your understanding, okay. See what is written here, right at the bottom. ELT and ETL and ELT, isn't it? So there are some tools like Talent, Informatica, once upon a time, of course, and there are multiple other tools. And cloud platform, you know already, these are the cloud platforms. Data lake. In coming days, you will get to learn the BigQuery, Redshift as well. Don't worry. So far data lake is concerned, Snowflake is the leader right now. In data science, Databricks and Data Robot, both are the leaders right now. In augmented analytics, ThoughtSpot is the leader. SAP is very expensive. Power BI is very dominating. That's the reason ThoughtSpot comes into the leadership automatically. Now, the first layer that you're looking at right now, that is ETL and ELT. है ना? तो उसको सिर्फ ETL बोला है क्या? दोनों भी है ना, ELT and ETL, both are there. बराबर है कि नहीं? The question is, when will it be ETL and when will be it? When is it going to be ELT? तो पुराना सिस्टम क्या था? ETL वाला था. नया सिस्टम क्या है? ELT वाला है. Extraction, then transformation. Extraction, then load. उसके बाद transformation. Isn't it? Point समझ में आया? तो एक काम करेंगे. Let's come back here. See, कल हमने ट्विटर से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और एप्लीकेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट किया. तो एक्सट्रैक्ट करके तुमने कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना. Where was that? HDFS. So HDFS happens to be the load in our case. And then comes your transformation. Now you're getting the point. Perfect, perfect. I like it. So now let's come back to the script. Okay. And we will go to Hive. Because अपने को कम टाइम में फटाफट खत्म करना है तो कैसे करेंगे? ये सब आउटडेटेड है. मतलब
इतना भी आउटडेटेड नहीं है, मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे यार, डोंट वरी, रिलैक्स. सो वी वांट हाइव, राइट? ये हाइव की जगह ये सब क्यों आ रहा है? नाउ आई एम इंस्टॉलिंग हाइव. ओके, सो यू टेल मी, हाइव में इंस्टॉल क्यों कर रहा हूं? वाई? तो वाई का मतलब ये है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस, सो दैट वी कैन रन क्वेरी. बराबर है ना? करेक्ट. अब होता क्या है, यूजुअली यू हैव टू क्रिएट अ स्कीमा, मतलब tables. You have to first create a schema, that is tables, and then load your data in that. तो जो तुमने अभी देखा नहीं है, आज देखोगे तो तुमको वो आइडिया आ जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? व्हाई वी से व्हाट वी से. तो हम लोड करके देखेंगे उसको. तो अभी मैंने क्या किया है, हाइव को मूव भी कर दिया है. अब उसका बैश आरसी कॉन्फ़िगर करते हैं जरा फटाफट. ओके, एंड देन perfect, let's paste this quickly. ओके, तुम जब उसके ऊपर जाओगे ना, अपाची की वेबसाइट के ऊपर, यू विल गेट दिस. से ये तो खोलना ही है मुझको वैसे भी, लेकिन यार ये माइक्रो इंस्टेंस में सब मरा मरा जैसे चलता है ना. सी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू hive.apache.org, और यहाँ पे देखो डाउनलोड्स का एक बटन है, लिख रहा है रिलीज, डाउनलोड अ रिलीज नाउ. ओके, ये आ गया, इधर इधर पहुंच गए. उसके बाद ये वाला तुमको कॉपी करना है, लिंक एड्रेस, और डब्ल्यू8 करके ये डाउनलोड करना है. यू आर डन. परफेक्ट. अब हम करेंगे इसको कॉन्फ़िगर. फॉर दैट आई नीड टू रीलोड बैश and then rename the hive environment.sh. Absolutely. Okay, see, the best practice is to paste that configuration over here, over somewhere here. Yes, यहाँ पे. लेकिन we are not following that best practice for now, क्योंकि Hadoop 1 वैसे भी outdated है. Just for the concept we are doing it. Okay. तो मेरा हाइव अभी क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, अंटार हो गया, मूव हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया. बराबर है कि नहीं? परफेक्ट. नाउ इफ आई टाइप हाइव, इट टेल्स मी, अब ये है ना, इन रियलिटी यू कैन डू 644 640 वट एवर यू लाइक. अभी हमने इसको नॉन प्रोडक्शन एनवायरमेंट है, इसके लिए 777 डाला है. तो ये देखा तुमने एरर्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो टेम्प फोल्डर है, ये डिस टेम्प फोल्डर, ये टेम्प फोल्डर हमने लिनक्स पे बनाया है कि हडूप के ऊपर बनाया है? कौन है वो लिनक्स पे बोलने वाला? हाँ, जो भी लिनक्स बोल रहा है ना, उसको अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे. चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, बदल दो. कल बताया था ना क्लाइंट वाली बात, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना, इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो पकड़ लेता है. क्यों ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों ऐसा फंसने का यार? कोई बड़ा सवाल हो तो समझ में भी आए, ऐसे चिरकुट सवाल के लिए अटक जाना, मतलब शेम, शेम ऑन अस. गेटिंग द पॉइंट? ऑलवेज थिंक इन दैट केस, हमारा जो क्लाइंट है वो कौन है ना, वो इंपॉर्टेंट है. क्लाइंट, वो एंगल से सोचो. ठीक है, अब तुमको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स शायद सुननी पड़ जाएगी. What were we doing? I also forgot. So let's come back here and close this confusion. Yes, I was looking for the IP address. I got it.
मुझको एक्चुअली वो कमांड फायर करके आईपी एड्रेस निकालने की एक आदत सी लग गई है। तो मैं वही सोच रहा था इधर आए क्यों, क्योंकि इन रियल एनवायरनमेंट यू नेवर गेट दिस ऑप्शन, यू नेवर गेट दिस ऑप्शन ऑफ गोइंग टू AWS एंड कॉपिंग द आईपी एड्रेस। तो अगर किसी ने पूछ लिया ना तुमको कि तू कैसे करता था, तो या आई कैन गेट दी बाय कमांड, आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द आईपी एड्रेस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, इफ कॉन्फिग मालूम है ना अपना। तो ये तुमको याद रखना, इंटरव्यूअर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते वो लोग, ट्रिकी क्वेश्चंस, दैट इज ओनली फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, नाउ 70050 50070 है ना यार, कितना जज्बात में आ गया आज मैं। सी 50070। ओके, और ऐसे कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ती है अपने को, ये हमारे काम की मजबूरी है। सो नाउ यू गॉट टू सी, तुमको दिख रहा है यहाँ पे टेम्प फोल्डर कहाँ बना है? सी, टेम्प फोल्डर इज राइट हियर, इजंट इट? हाइव, और ये खाली है। ओके, परफेक्ट, so that part is understood. Now let's type hive. See, actually मुझको है ना cd एंटर करना चाहिए और उसके बाद hive टाइप करना चाहिए। Hive, in the background, it uses a database, and the name of that database is Derby. अब हमारे पास है ना कोई डेटा नहीं है, देखो USER वाला कोई फोल्डर है क्या? No, we don't have any folder as such, isn't it? We do not have any folder as such. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा डेटा। तो यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन गो शॉर्टकट लाइक दिस, लेकिन इसमें डेट्स जो है पुरानी वाली डेट मिलेगी, तो वी विल कॉम्प्रोमाइज दैट। अदरवाइज यू कैन, कल जो मैंने किया था ना उसको अगर तुमने कंटिन्यू करने का कोशिश किया तो माइक्रो इंस्टेंस पे वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, इसके लिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। तुम समझे मेरी बात को? सी फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं समझ में आएगा, जनरेट कहाँ गया वो, .py, .py, थोड़ा सा पावरफुल मशीन लगेगा, यस। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ फटाफट, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट खराब हो गया तो मगजमारी हो जाएगी। सो आई एम डाउनलोडिंग दैट फाइल विच इज जनरेटिंग समथिंग फॉर अस, राइट? तो एन एप्लीकेशन ऑफ कोर्स, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। लेट्स चेंज द एड्रेस दिस टाइम। मैंने उसका जो एड्रेस है देखो, वार फोल्डर से हटा के आई एम गोइंग टू मेक इट होम फोल्डर, बराबर है? सो लेट्स मेक इट होम फोल्डर। शॉर्टकट भी कर सकते हैं हम लोग टिल्डा डाल के, डोंट वरी। होम ubuntu, see, instead of demo I will keep it as it is. Okay, home ubuntu. Now there will be a batch running for Python. So anybody who wants to enroll that batch, तुमको आएगा मैसेज, अरे तुमको करना है कि नहीं करना है, तुम फोकट में सीख लो, जस्ट इनफ पाइथन, कभी कभी ना कभी काम ही आएगा वो। ओके, और ऐसा तुम पाइथन सीखने जाओगे तो वो लोग तुम्हारे को 6 महीने 1 साल पका डालेंगे, जो इतना टाइम किसके पास है? लाइफ है, जिंदगी है, सीखते रहेंगे। अब क्या, सीखते ही रहना है, कुछ ना कुछ नया नया, एक बार फील्ड में घुस गए तो सीखते रहना पड़ता है, कंटिन्यूस। That is how it demands. So yesterday we used sudo, today I'm not using sudo, okay? But I need to install, I realized, Python.
ये पुराना वर्जन है, वर्जन 2, because the script is made in that. Or otherwise, I will have to go to that script, find out where the problem is, and rectify that and fix that. Both the options are okay, but that option is a lengthy option. We are kamchor people, we are administrators, we do the easy one. ये याद रखना पॉइंट. हाँ, अभी कोई घमंडी रहेगा तो पाइथन की फाइल में जाएगा, ढूंढम ढानी करेगा और उसके बाद में उसको इशू को रिजॉल्व. अरे मैं सीधा सीधा पीछे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में गया और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके ले लिया. अपने को मतलब किससे है? हाँ, देखा तुमने, देखा, बन गई. एप्लीकेशन फाइल इज रेडी हियर, दिस वन. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फेंक देंगे ऊपर. किधर फेंकेंगे? क्लस्टर पे. सी नाउ if I want I can do it from here also, but the problem is if I do it from there, hive आ गए जगह पे. Okay, so what I'll do is home ubuntu. अरे वाह, क्या बात है, नसीब वाला हूं मैं. Perfect. Okay, so I'm copying this. उसका नाम मैंने रीनेम कर दिया, देख रहे हो तुम, server log.log. Okay, so I'll just copy and paste. कुछ करना नहीं है. अब क्लस्टर के ऊपर आया कि नहीं आया देखते. Okay, let's go home user ubuntu and server log.log. अब ये है ना 5 MB की फाइल है, 5.5 MB की. कल जो मैंने जो डेटा यहाँ पे डाला था ना, वो था समवेयर अराउंड आई थिंक मोर देन 200 MB. और माइक्रो इंस्टेंस उसको जो प्रोसेस करता है तो मरो मरो के जैसा चलता है वो. दैट्स द रीजन when you want to check this, okay, you can do it like this. Ultimately it's one of the same. Why it is one of the same, you will come to know right away. अब मैं गया हाइव पे. ओके, जब तुम ये हाइव चालू करते हो तो डरबी का एक डेटाबेस है, छोटा सा डेटाबेस है 200 MB का. इट्स नॉन प्रोडक्शन. तो हमको उसको डरबी से हटा के माई एसक्यूएल में डालना पड़ता है, जो अभी हम लोग क्लाउडेरा में देखेंगे. तो हम लोग क्लाउडेरा को डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे, उसमें तुमको देखने मिल जाएगा हाउ इट वर्क्स. बट फॉर नाउ ओके, ये तो मैंने दिखाई दिया तुमको, तो टाइम वेस्ट क्यों करूं. लेट्स क्रिएट. अब देखो डेटाबेस वाले, जिनको डेटाबेस आता है उनके लिए और जिनको नहीं आता है उनको सिर्फ इतना समझ में आ गया भाई, मैं हाइव के प्रॉम्प्ट पे गया, उसके बाद मैंने बोला क्रिएट डेटाबेस कॉल्ड सर्वर, तो उसने मेरे को बोला हो गया. ओके, ठीक है. अब शो डेटाबेसेस तुम लोग कर लेना, लेकिन वो कंप्यूटर्स डम होते हैं ना, डम, बेवकूफ. तो उनको बताना पड़ता है कि मेरे पास 2 डेटाबेस है, एक है सर्वर और दूसरा है डिफॉल्ट, तो यूज कौन सा करना है. तो उसको बताना पड़ता है कि ये वाला यूज कर, isn't it? तो अब उसको सर्वर यूज करने के लिए बोल दिया. अब मैं जो ये करना हूं ना, क्रिएट टेबल, और उसका नाम क्या रख रहा हूं, सर्वर डेटा. देखो एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे है ना, ये टेबल नहीं है, ये डेटाबेस है, और यहाँ पे ये टेबल है. तो डेटाबेस के अंदर टेबल है, ठीक है. और टेबल के अंदर क्या है, स्कीमा है. स्कीमा क्या क्या है, स्कीमा है. तो जब तुम डेटा को कैट करते या टेल करते या हेड करते तो उससे तुमको स्कीमा देखने को मिलता है. इसमें टाइम है, तो टाइम क्या, एक स्ट्रिंग है. आईपी स्ट्रिंग है, कंट्री एक स्ट्रिंग है, स्टेटस एक स्ट्रिंग है. तो कितने हो गए ये, कॉमा सेपरेटेड, 4 कंपोनेंट्स हो गए. रो फॉर्मेटेड डिलिमिटेड फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय पाइप. लोकेशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इधर इन पाथ नहीं है, क्या है, लोकेशन. खतरनाक है एकदम, है ना. इसका जो चमत्कार है वो ये है दोस्त, कि अब तुम्हारा प्रोडक्शन में ये ना ऐसा नहीं होगा, ये यूएसईआर अबंतु. तुम्हारा प्रोडक्शन में क्या होगा, जो भी डेटा जहां से तुम फेच कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट का जो नाम है उसके नाम का ये फोल्डर होगा अबंतु की जगह पे. बस ये एक फर्क होगा. अब इसके बाद कुछ भी आने दे, 1 टेराबाइट आने दे, 1 पेटाबाइट आने दे, 1 जेटाबाइट आने दे, 1 योटाबाइट आने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता.
इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब ये बात जो सुना ना, जिसने डीबीए ने सुन लिया ना, उसका भेजा उबल गया इधर ही सुन के। तो इसने क्या बोला कि मैंने ना तेरे लिए क्या बनाया, टेबल वेबल जो भी चीज सब बना दिया। अब एक क्वेश्चन है, मैंने पहले डेटा लोड किया या पहले स्कीमा बनाया? हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने पहले डेटा लोड किया, पहले एक्सट्रैक्ट किया एप्लीकेशन से, तुम्हारे सामने ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया एप्लीकेशन से, उसको लोड किया एचडीएफएस पे, कॉपी फ्रॉम, नहीं कॉपी लोकल फ्रॉम, नहीं कॉपी फ्रॉम लोकल, क्या यार, कभी कभी ऐसे भेजा घूम जाता है। कॉपी फ्रॉम लोकल, है ना, लोड किया। लोड करने के बाद मैंने क्या बनाया, स्कीमा बनाया। देखा तुमने, यहां पे डीबीएस है ना, सर खुजा के रह जाते हैं। कैसे, वो देखो। अब मैं क्वेरी करने जा रहा हूं, समझो ये डेटा है ना, इसका साइज 500 टेराबाइट्स है, ऐसा समझ के लो, तब भी वो वैसे ही चलेगा जैसा अब चल रहा है। अरे रियल में डीबीएस को यहाँ पे बहुत झटके लगते हैं, दे गो क्रेजी, दे कांट इवन बिलीव समटाइम्स, दे कम वेरी क्लोज एंड वॉच, क्या हुआ यार, कुछ समझा यार, पूरी दुनिया पलट डाले ये लोग ने तो। पलट के अभी 20 साल हो गए दोस्त। हाँ, वेलकम। दुनिया पलट के 20 साल हो गए। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट। अब यहाँ पे यू कैन फायर वॉट एवर यू लाइक, ओके। से ये जो हमारा टेबल है, ओके, इसके अंदर हमने एक बार स्कीमा बना दिया, उसके बाद जो भी चाहिए तुम फायर करते रहो। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, whenever there is a distinct command, इसका मतलब ये होता है, ये इसके दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन बताएगा हमको, है ना। तो उसके लिए क्या लगेगा, प्रोसेसिंग पावर। देखो, एक है प्रोग्राम का पावर, और एक है हार्डवेयर का पावर, और एक है दोनों का पावर साथ में यूज करना पड़ता है। अब यहां पे डीबीए को लगेगा और एक झटका, वॉच। द मोमेंट आई फायर दिस कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, व्हाट हैपेंड, it's running a map reduce job. Map job completed 100%, and CPU utilization blah 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 2.61 blah blah blah, reduce, अभी reduce का job चालू है, हो गया। देखा जाए तो स्क्रिप्ट के हिसाब से सब यूनिक है। तो एक क्वेश्चन है इधर, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, तो यू विल से 25 seconds। अब मैं ना तुम्हारा डेफिनेशन, आईटीआईएल का डेफिनेशन एक बार फिर बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एनी डेटा that is in tabular format where you can run an SQL statement which returns, हाँ देखा दिनेश, within 1 minute, देखा तुमने, within 1 minute। तो ये जो है ना within 1 minute, देख के तुमको ऐसा लगा होगा कि ये RDBMS है। ना 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 ना, 5 MB का डेटा कोई प्रोसेस करता है क्या कभी? नहीं करता ना, नहीं। 5 टेराबाइट, 50 टेराबाइट, 500 टेराबाइट, इसको डेटा बोलते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए पैदा हुआ है ये। तो यहाँ पे तुमको 25 seconds की जगह क्या मिलेगा मालूम है, 25 minutes। थोड़े बहुत तगड़े मशीन में भी ऐसा मिलेगा, 25 minutes, 5 minutes। अरे 1 minute और 1 second हो गया तो खत्म हो गई उसकी कहानी। अब लगे, अभी लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो उसको तुम बोल पाएंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा? यू कांट कॉल दैट स्ट्रक्चर्ड डेटा, नो यू कांट, है ना। यही तो चमत्कार है जावा का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावा। In the background, you are actually feeling it is SQL. However, it is to make your life easy. ये देखो, याहू ने पिग क्रिएट किया और फेसबुक ने हाइव क्रिएट किया। तो फेसबुक के पास बहुत डेटा था, उन लोगों को एक प्रॉब्लम था, और उनके पास एसक्यूएल जानने वाले बहुत सारे एनालिस्ट थे।
तो उन लोगों ने क्या किया, प्रोग्रामर्स को बोला कि इनको ऐसा बना के दो, इनको लगेगा कि ये एसक्यूएल है। बन गया, हफ्ते भर की ट्रेनिंग दिया, हो गया काम खत्म, चालू हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक नया क्वेश्चन, चलो तुमने एसक्यूएल के बहुत सारे फायरिंग किया स्टेटमेंट, और तुमने बहुत क्वेरी करके अपना अपना इंफॉर्मेशन निकाल के दिया। अब तुम सीईओ को बोल सकते क्या ऐसा, तुमको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा इफ यू वांट टू टॉक टू डेटा? कैन यू से दैट? नो, नॉट एट ऑल, यू कांट। तो क्या सोल्यूशन है? चलो तुम बताओ, यू टेल मी व्हाट इज द सोल्यूशन, आई वांट टू नो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वेरी नाइस, विजुअलाइजेशन, इजंट इट? सो वो लेयर पे, अब एक क्वेश्चन, कैन यू कनेक्ट हाइव टू पावर बीआई और टैबल्यू और एनी विजुअलाइजेशन टूल? देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, कैन यू कनेक्ट? सो उसका आंसर है यस, यू कैन कनेक्ट। याद रहेगा ये आंसर? यस, यू कैन कनेक्ट। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर ये जो एनालिस्ट लोग हैं ये इस तरीके से क्यों करते क्वेरी वगैरह? वो उसका रीजन ये है कि दे डू द क्वेरी एंड दे क्रिएट फाइल्स एंड दे सेव दैट फॉर टैबल्यू। ये जितने भी ऐसे क्वेरीज होती है ना, ये फायर कर करके उसकी एक फाइल बनाते, उसको स्टोर कर देते और वो टैबल्यू से कनेक्ट कर देते। व्हाई? सो दैट टैबल्यू से जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उनको देखने को मिलेगा, तो एकदम उनको कोई क्वेरी फायर नहीं करना पड़ता। दे डोंट, even if they want to, they will tell the analyst team to do it. Now next question, will analyst team work in such an environment, or they have a tool where they will work? There is a tool in which they work. So what is the name of that tool? Hue, very nice. देखा निखिल ने बताया, Hue is the name of that tool. Okay, तो एक बार वापस से देख लो, get Hue quickly. यहाँ पे आया ना get Hue demo। इसका जो रियल वर्जन है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। बट अब जो है, ताकि दिमाग में रहे, कॉन्सेप्ट खराब ना हो। अब एक खास बात, सी व्हेन आई क्लिक हियर इन एडिटर, ये एडिटर है, जरा ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से देखो। माई एसक्यूएल, फिनिक्स एसक्यूएल, प्रेस्टो एसक्यूएल, फ्लिंक एसक्यूएल, हाइव एसक्यूएल, के एसक्यूएल डीबी, स्पार्क एसक्यूएल, की तो सब एसक्यूएल एसक्यूएल खाली। मतलब जिसको एसक्यूएल बहुत अच्छा आता है वो एनालिस्ट बड़े आराम से बन सकता है। हाँ, दैट्स व्हाट इट मींस, बड़े आराम से, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उनका जो मेजर स्किल सेट है, तो एडमिन कौन बन सकता है? जिसको लिनक्स अच्छा आता है, अच्छा मतलब नॉर्मल आता है, उसको अंडरस्टैंडिंग है डेटा के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एंड ऑल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट सो लॉन्ग। इफ यू हैव दोज अंडरस्टैंडिंग यू कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो नाउ तुमको ई एल एंड टी, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है, तो फिर ईटीएल किसको बोलते हैं? भाई मैंने, देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। आई सेड ईएलटी अभी समझ में आया आज, लेकिन ईटीएल किसको बोलते हैं? व्हेन यू लोड डेटा इन डेटाबेस, तो ये हाइव इज डेटाबेस? नॉट एट ऑल। तो क्या डिफरेंस है? ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने कभी समझा दिया ना इंटरव्यू में, उसको तुम्हारी कीमत समझ में आ जाती है ऑटोमेटिक। सो व्हाट विल डू इज, फटाफट इसको समझ लेते हैं। अरे यार, ये हमेशा का नाटक हो गया शायद। स्टॉप शेयर एंड ऑल दिस। Okay, now you can see the screen. Perfect.
See, E, L and T. E, T and L. दो आइटम है. Okay. And I told you we are extracting, then we are loading, and then we are transforming. तो वो अभी तुमने देखा, हमने उसके लिए यूज किया Hive. We can use Impala. We can use Taze. Okay, we can use multiple other components. Trust me, we can use Spark. You can use Python. Now the question is, whatever you use, it doesn't matter. Okay, तुमने एक बार उसको HDFS पे लोड किया, HDFS. तुमने Hive से इसको ट्रांसफॉर्म किया, तुमने फ्लूम से इसको एक्सट्रैक्ट किया. एक एग्जांपल है. Okay, my question to you is, what kind of an application are you connecting to Hive, Impala, Taze, Spark, or Python? So your answer is going to be user application. तो मैं तुमको पूछूंगा ना, what type of user? तो तुम बोलोगे employee. जैसे कि तुमने मुझको बोला Tableau. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. पावर BI वाला नाराज मत होना, because this is an example. So say for example, I am connecting employee application to any one of this so that I can do my BI work or visualization, isn't it? Analysis. तो तुम बोलोगे मैं Hue भी कनेक्ट कर सकता हूँ. करेक्ट? अग्री. तो Hue पे कौन काम करेगा? एम्प्लॉय. तुम जो भी कनेक्ट कर रहे हो, कौन काम कर रहा है उस पे? अल्टीमेटली एम्प्लॉय. एम्प्लॉय पैसा लेता है कि देता है? आउटकम. तो ELT जो है ना, इसमें है तो बिग डेटा है, देयर इज बिग डेटा हियर, अग्री विथ यू, लेकिन ये सिर्फ आउटकम देता है. व्हाट इफ यू लोड दिस डेटा, है ना? अभी तुमने हाइव से ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, HDFS पे डेटा है, HDFS, but now you're loading this data in RDBMS or NoSQL. What will be the difference? Now when you connect your application, your users are who? Your possibly ad revenue, and your customers are who? Those who actually pay you. तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे मेरे पास 1 बिलियन यूजर्स है और यहाँ पे मेरे पास 1 मिलियन कस्टमर्स है. तो तुमने एक नोटिस किया बात को? 1 मिलियन होने से मेरा जो वर्कलोड है, वो ऑफलोड हो चुका है. पहले मेरा जो वर्कलोड था वो किधर था? RDBMS पे था. अभी वो ऑफलोड हो गया किसके ऊपर? NoSQL के ऊपर. Just imagine if I had to keep all these Pocatias, users, users. Actually मैनेजमेंट ऐसे ही सोचता है, ये फोकटिये है, इन पे खर्चा है फुजूल का, ये फालतू में एक दूसरे को मैसेज भेजते रहेंगे, खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, देख मैं क्रिस्टल ले रहा है, ये देख, इसके एक फोटो भेजने की जब 50 फोटो भेज दिया फोकटे बोल के, लेकिन खर्चा तो हमको आता ना उसको संभालने का. सो दीज पीपल, दीज यूजर्स, अगर हमको उनको यहां रखना पड़ता RDBMS पे, so that would have been hell lot of a cost. तो अब ये क्वेश्चन ये है कि is NoSQL supporting RDBMS or is it against RDBMS?
इट इज सपोर्टिंग, है ना, मतलब नो एसक्यूएल इज कॉम्प्लीमेंटिंग RDBMS, बराबर है। अब एक खास बात, तुम में से कोई एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसको सच में एक्सपोजर आ गया, तो फ्यूचर में वो एक क्वेश्चन रेस करेगा, अभी तो नहीं कर सकता, ठीक है, सो के कैपेसिटी के ऊपर है। बट सपोज कोई ऐसा पुराना बंदा है जो मेरा पुराना सेशन सुन चुका है और वो एक बात क्वेश्चन रेस कर सकता है यहाँ पे। नो एसक्यूएल में भी तो अभी RDBMS आ गया है ना, RDBMS आ गया है, तो वी डोंट नीड दिस। So is this correct? So the answer is yes, it is correct. However, there are 10% of banking systems who do not support NoSQL RDBMS. 10% क्या है वर्ल्ड में? ये डोमेन है, बैंकिंग का डोमेन है, और बैंकिंग का जो डोमेन है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। किसको? NoSQL RDBMS को। वो सपोर्ट किसको करता है? पुराना वाला, ये RDBMS, एसिड कंप्लायंट। दे डू नॉट सपोर्ट दिस वन। तो इससे क्या हो गया? सबकी मजबूरी हो गई बिकॉज ऑफ द बैंकिंग। अल्टीमेटली पैसा तो बैंक से आएगा जाएगा ना। आया लॉजिक समझ में? लेकिन एक खास बात है, अब तुमको ये बात, जो डेटाबेस वाले हैं उनको ये बात फटक से समझ में आ जाएगी, नॉन डेटाबेस वालों को जल्दी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे इसीलिए ओरेकल ने ऑटोनोमस डेटाबेस बनाया है। क्यों? क्योंकि अब इसको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे ऑफलोड हो गया ना पूरा वर्क, काम इधर ऑफलोड हो गया। सो यू डोंट नीड टू मच ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, घड़ी घड़ी बैठ के परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर रहे, हर महीना, हर हफ्ता, हर 10 दिन, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड, एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इज डन ऑटोनोमसली। तो इसका मतलब यहाँ पे DBA को दूसरा जॉब ढूंढना ही है। तो उसके बाद दो ऑप्शन है, SQL आता है तो या तो वो एनालिस्ट बन जाएगा, ओके, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ही वांट्स टू स्टे इन हिज ओन फील्ड, तो उसको कोई एक NoSQL सीखना पड़ेगा। तो वो मुझको अगर पूछेगा विच वन शुड आई लर्न, आई विल एडवाइज दैट गाय टू गो फॉर HBase, and so on. There is a list of this, okay? But for now, just to understand the concept, दिखने को कितनी आसान चीज थी ना ये, but that's how it is. So when, see, हमारा जो लेयर है ये स्टोरेज का एक लेयर है, ओके, इसके ऊपर एक प्रोसेसिंग का लेयर है, प्रोसेसिंग। तो इन स्टोरेज, if you want, I can write ozone S3 echelon map or FS EMRFS GFS। तुम सोच रहे हो ना, अरे HDFS कभी आएगा? ठीक है भाई, वो भी लिख देता हूँ, HDFS। ओके, इट्स ऑल वन ऑफ द सेम। तो दिस इज माय स्टोरेज का लेयर, ओके। नाउ processing, so it can be multiple kinds of processing, isn't it? The real time processing, ad hoc processing, parallel processing, distributed processing, and finally batch processing. इसके ऊपर का कौन सा लेयर है? Integration and ingestion, or if you want you can say data integration, data ingestion and pipelining. क्या डिफरेंस है? डेटाबेस, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। तो वर्ड्स बहुत संभाल के यूज करना। When I use the word integration, I am talking about integrating an application
When I'm talking about ingestion, I'm talking about bringing data from a database. When I'm saying pipelining, that means from one storage to another storage. Bhayankar, isn't it? That's how it is. Okay. Now the question is, this is your E, this is your T, and this is your L. ETL, isn't it? बात तो वही है. Now I'm going to write the same thing once again. अब E बीच में लिखा हुआ है. So I'm writing now E L. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे, this is where transformation is. So E T L and then E L T. ये भी एक है ना, ELT. So extraction remains as it is. In the load, I may go for multiple kinds of databases. तो ये जगह कम पड़ेगी, इसके लिए इसको मैं हटा देता हूँ. And I may go for, say, जब लोड करना है in database, so you may have multiple options. Say for an example, there is a layer of technology. Okay. There is a layer of use case. अभी बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका. And there is a product, technology and use case. तो टेक्नोलॉजी में क्या ऑप्शंस है? So say for example, there are 225 databases. 225 what? Databases, yes. और मुझको इसमें से चॉइस करना है कौन सा वाला लूंगा मैं. So I will take the one which is taken by Google, Facebook, आधार. ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो यूज केस है वो तगड़ा है. लिंक्डइन. ओके. तो यूज केस तगड़ा है कि नहीं? यस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी? की वैल्यू पेयर. Facebook. What is the name of the technology? Columnar database. What is the name of technology in case of Aadhaar? Document oriented database. LinkedIn जो database यूज कर रहा है उसका नाम क्या है? ग्राफ ओरिएंटेड. स्पेलिंग का सत्यानाश कर दिया मैंने, ठीक है. ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस. तो ये टेक्नोलॉजीज में कितनी नाम लिखे मैंने? 1 2 3 4. एक अभी बाकी है. ओके, विल टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर. अब इसके प्रोडक्ट्स के नाम. रायक. सी ओरिजिनली गूगल इज नॉट यूजिंग रायक, दे आर यूजिंग बिग टेबल. बट मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका नाम रायक है, विच इज एवरीबडीज फेवरेट एंड स्टेबल. फेसबुक जो प्रोडक्ट यूज करता है उसका नाम एच बेस है. ओके. अब इसके इसके कंपैरिजन में मोस्ट पीपल दे से कसंड्रा एंड दिस दैट ऑल इज वेरी गुड एंड दिस दैट ऑल. लेट देम से यूज केस किसका है? फेसबुक का है. तो मैं तुमको बोलूंगा कि इधर एक लोकल कंपनी का है और ये फाइजर का है, कौन सी दवाई चाहिए तेरे को, ले ले. तो यू मेक योर चॉइस. नाउ सी Kafka happens to be on this layer. Okay. Document oriented database is MongoDB. ये प्रोडक्ट का नाम है, ऊपर लिखा है इधर प्रोडक्ट. ये टेक्नोलॉजी का नाम है, ये यूज केस है. ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. फिर ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस में नियो 4j.
सी नियो 4J जब अपन बोलते हैं तो मैट्रिक्स का वो नियो याद आ जाता है ना, नियो 4J। ओके, मल्टीपल डेटाबेसेस। ओके, उसको उसका ग्राफ लिंक्डइन जैसे तुमको बताता ना कनेक्शंस तुम्हारे, वो कैसे बताता है, इस ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस से बताता है। इफ यू आस्क मी विच इज गुड फॉर अ डीबीए, मतलब ओरेकल डीबीए, आई विल से दिस वन, विच इज गुड फॉर अ फ्रेशर, अगर फ्रेशर ने प्रोग्रेस किया तो, विच इज गुड फॉर समबडी who wants the toughest of all, then Neo 4J happens to be the toughest of all. Expert layer है ये. And Rayak is only for people, those who have some programming knowledge. Okay, so you can call that people coming from DevOps and they want to get into deep database. This is Rayak is for them. सबके लिए अलग अलग है. तो ये kind of employee हो गया ना, type of employees who can take the career. In other words, okay, now the question is, जब मेरा डेटा इसके अंदर आ जाएगा, रायक, एचबेस, मोंगोडीबी, नियो 4J, तो उसका कुछ परसेंटेज पॉसिबली होगा. से फॉर एन एग्जांपल, आई एम लोडिंग माय 30% डेटा ओवर हियर, 20% हियर, 20% हियर, ओके, एंड 20% हियर. तो बचा कितना? 10%. एंड दैट 10% आई विल लोड in RDBMS. So let's write here RDBMS. Okay. तो यूज केस भी चाहिए तुमको. Harte Hank is the name of the company. Use case American 10%. Okay. प्रोडक्ट का नाम क्या है? Splice machine. Who can do this? Again, DBAs can do this. Can fresher do it? बहुत टाइम लगेगा. हाँ, बहुत मगजमारी. DBA उसके लिए पीस ऑफ केक है. पीस ऑफ केक, बस खाना है. ओके, दैट्स हाउ इट इज. खाना है और पगार बढ़ाना है. हाँ, दैट्स हाउ इट इज. क्योंकि ओरेकल ने तो ऑटोनोमस बना के उनको वैसे ही बेघर कर दिया है. और ये बात वो लोग जानते हैं अच्छे से. ओके, सो नाउ योर 100% डेटा ये जब इसके अंदर आ गया है, तो आई वुड से देयर हैज टू बी सम कंपनी विच इज यूजिंग ऑल दिस, और सम कंपनी मे वांट टू यूज एवरीथिंग एट वंस. उसको हम बोलेंगे पॉलीग्लॉट persistence. क्या बोलेंगे इसको? Polyglot persistence. See, तुम्हारा ETL सुनने को कैसा लग रहा था? प्यारा प्यारा ना? Isn't it? भाई मार्केट में जिन लोगों को ये पता है कि ये ETL वाला है, तो they know modern ETL वाला कितना टफ होता है. They know it very well. Okay, so now let's come back to our concept number. कहाँ गया अपना वो? Here it is. Okay. तो बाकी के जो स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा है, ओके, वो तुम लोग फायर कर लेना, डोंट वरी. हाउएवर, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सपोज आई वांट टू डू अ वर्ड काउंट. आई वांट टू डू अ वर्ड काउंट ऑन अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा. समझो ना, आईसीआईसीआई का हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल हम लोग वापस से लेंगे. कि सपोज इट्स अ ग्लोबल कंपनी एंड दे हैव मे बी 100 million customers globally, and they want to find out कि उसमें वीजा वाले कितने, मास्टर वाले कितने, मिस्ट्रो वाले कितने हैं, और ब्ला 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 जो उनके एटीएम को यूज करते हैं, रुपए वाले कितने हैं, एमएक्स वाले कितने हैं. तो जितने भी गेटवेज हैं उनको मालूम करना है. तो उनको क्या करना पड़ेगा?
word count. They have to find out कि which one is using our, और किस कार्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है, किस में सबसे ज्यादा बैलेंस होता है, who are the rich class, which card is a rich class and which card is a poor class, and where should we focus and decision making and blah blah blah. Okay, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन नंबर 1, we can process our data by map reduce. आया लॉजिक समझ में? So what we'll do is we'll go to the script, scroll right on top. अभी मैंने तुमको एक हाइव का एग्जांपल दिखाया ना. If I want, I can actually continue with hive right away. लेकिन वो कॉन्सेप्ट खराब कर देगा तुम्हारा. That's the reason I'm not doing that. Okay. So what I'll do is I will go to the MapReduce component. Hopefully everything is working. Okay. तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है Java MapReduce और ये लाइंस दिख रही है तुमको, है ना? तो जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो इसको देख के उनको बुखार आ जाता है, और जिनको जावा आता है उनको अगर मैंने पूछ लिया व्हाट इज दिस इंट राइटेबल, सो वो लोग मुझको एक जवाब देंगे, बोलेंगे दिस हैज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम a third party source. It's not the Java's component. It is a class file created by some third party. And the name of that third party is Doug Cutting, जिसने ये बनाया है. ओके, तो ये अगर मुझको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, तो कहाँ से इंपोर्ट करूंगा मैं इसको? कोई जार फाइल होगी. अब जार का मतलब ये होता है जावा आर्काइवल्स. अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तुमको पता होना चाहिए. तुमने बोला मैंने कभी जिंदगी में वर्ड काउंट का कोड ही नहीं देखा, तो ऐसा काम नहीं चलता. मतलब जिसने इतनी धूम मचाई बाजार में और उसको तुमने कभी देखा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए देख लो एक बार. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस टू इंपोर्ट्स. हाँ, तो ये डिफॉल्ट है, जावा का है, और ये नीचे के जो इंपोर्ट्स है ये किसके हैं? ये उस जार फाइल के अंदर रखे हुए हैं that is created by duck cutting. Now because we are using a single node cluster right now, so luckily we are not going to import that, we are going to export that. आया समझ में? Okay, so ये जितने भी ये int writable, long writable, ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ कहाँ लिखा है, उसकी क्लासेस कहाँ है, इसके अंदर अवेलेबल है. अब तुमको ये देखना है ना क्लासेस दिखती कैसे है, बराबर है ना? So let's have a look. Now before we go there, what we are doing is we are creating a .java file. Okay, so उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा. We are not using an IDE. Why we are not using an IDE? Because we are not programmers. We are just looking at it कि हाँ अच्छा ऐसा चलता है क्या, ये लोग ऐसा काम करते हैं. Okay, understood. बस उसके लिए. So I am saying cat redirect in this file. तो इसमें देखो W कैपिटल है, C कैपिटल है, याद रखना इस पॉइंट को. तो ये बोल रहा है कि ठीक है, अब क्या तेरे को डालना है, डाल ले इस फाइल के अंदर. सो आई एम कॉपिंग दिस फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे देखने की चीज ये है कि इसमें लाइंस कितनी सारी है. तो अप्रोक्सीमेटली देयर आर 60 लाइंस approximately. Okay, I'm pressing Control C to come out of it. Now you want to see whether the file is ready or not, है ना? तो मैं इसको cat करता हूँ. देखा तुमने? I'm doing cat. So फाइल के अंदर लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 3 चीज लिखी हुई है. एक है मैप क्लास, एक है रिड्यूस क्लास, और एक है मेन क्लास. 3 चीजें लिखी हुई अंदर. बट तुमको तीनों चीज नहीं दिख रही ना, तुमको तो एक ही फाइल दिख रही है. या दैट्स करेक्ट. However, in the organization they will give this job of creating a map class to Cognizant, reduce class to TCS, and driver class to Wipro. And then they will tell the third party like maybe IBM कि अब तुम क्या करो, इसकी टेस्टिंग करो. तो विप्रो से एक बंदा आएगा, बोलेगा मैं ना हडूप के प्रोजेक्ट में ना काम करता हूँ,
तू हदूप के प्रोजेक्ट में क्या काम करता? तो अभी तुमको आता नहीं तो तुम मुझसे कुछ पूछ ही नहीं सकते। लेकिन हमारे जैसे आदमी को बोलेगा तो मतलब किस पे करता है, रेडियस पे करता है, मैप उस पे मैपिंग पे करता है कि मेन क्लास पे कि टेस्टिंग पे? हाँ सर सर मैं टेस्टिंग पे करता। चल बढ़िया, चुपचाप टेस्टिंग। तो ये काम को बांटा जाता है 4 से 5 अलग अलग कंपनीज में। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी की जो कोड की जो लाइन होगी वो 20,000 10,000 लाइन्स होगी। भेजा उबल रहा है ना सोच के। उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो तुमको जो दिखा वो क्या था? कोड। लेकिन जो कंपनी का डायरेक्टर है उसको क्या दिखता है? बिजनेस लॉजिक। दे मेक श्योर नो बडी नोज एवरीथिंग। नो बडी। वाई? बिकॉज तुमने समझो पेप्सी का फॉर्मूला कोको कोला को बेचा और कोको कोला का फॉर्मूला पेप्सी को बेचा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यस। सो आईटी में ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या है, डेवलपर्स को दबा के रखा जाता है। और बेचारे डेवलपर्स, ओह माय गॉड, उनको एक प्लास्टिक की लॉलीपॉप दी जाती, जिंदगी भर चूसते रहते, कभी खत्म ही नहीं होती वो। यस। एंड दे थिंक इट इज अ मिरेकल। एंड वी टेल देम अबे प्लास्टिक की है, कभी नहीं पिघलेंगी। और वैसे भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तेरे को इतना तो अक्कल होना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। सो नाउ सी वी हैव दिस फाइल। तो यू आई वांट लाइक यू टू सी दिस फाइल। ओके। अच्छा, हमने वो हाइव जब टाइप किया था ना तब ये बनी थी, मेटास्टोर डीबी। और वो डर भी है, इसका नाम क्या है डेटाबेस का? अच्छा एक बात याद रखना, हाइव इज अ डेटा स्टोर। यहां लिखा है मेटा स्टोर, ठीक है ना? इट्स वन ऑफ द सेम। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन अ स्टोर एंड अ डेटाबेस। तो वो मैंने तुमको ब्लैक बोर्ड पे बताया ऑलरेडी। इन अ डेटाबेस यू गेट इनकम, ओके, और एटलीस्ट यू कैन ऑफलोड योर वर्कलोड। तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा होता है, आइदर इट सेव्स मनी फॉर यू और इट अर्न्स मनी फॉर यू। ये याद रहेगा पॉइंट। आइदर इट सेव्स मनी फॉर यू और इट अर्न्स मनी फॉर यू। लेकिन डेटा स्टोर जो है ना, इट जस्ट गिव्स यू एन आउटकम। इट नाइदर सेव्स मनी फॉर यू और नाइदर इट इज अर्निंग मनी फॉर यू। इट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। खर्चा है, खर्चा। ओके। तो अभी हमारा जो फोकस है वो किधर आना चाहिए? इस फाइल के ऊपर आना चाहिए, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है। यानी किसी डेवलपर ने इसको बनाया, हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। अब ऊपर है ना कुछ 4 इंपोर्ट्स थे, मैंने तुमको बताया। और वो कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है? यूजर लोकल हदूप। एंड दिस इज दैट कोर फाइल। इन दिस जार फाइल वी हैव दीज क्लासेस। ओके। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिनक्स में इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्लास पाथ को। सो आई विल export this right away. And now I'm creating a directory to show you the classes. तो अब ये डायरेक्टरी खाली है ना, क्योंकि देखो इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, ls करके दिखाया तुमको। ओके, सो लेट्स गो बैक। एंड नाउ आई एम सेइंग जावा कंपाइलर -d, मतलब द डायरेक्टरी in which I want you to put all the class files is this one, and the main class that you're looking for which has the code is this one. Okay, तो ये मैंने सिंटैक्स फायर किया और उसने क्या किया, इसके अंदर क्लासेस डाल दिया। अब तुम बोलोगे मेरे को देखने का है, तो देखो एक है मैप क्लास, एक है रिड्यूस क्लास और एक है मेन क्लास। ड्राइवर क्लास भी बोल सकते हो उसको। इन अदर वर्ड्स दिस, अब ये थोड़ा सा जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है ना, इनको हेक्टिक लगता है। इनको लगता है अरे मर गए रे बाप, अरे खाली सुनने को बोल रहे थे, करने को थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग। तो अभी समझ में आएगा कि why hive is created and why pig is created, isn't it? Why Tez is created and why Impala is created and why Phoenix is created and why Flinks is created and why Presto is created. अब लॉजिक समझ में आया? Because this is pain in the wrong place. Even I agree with you. And why Spark is created and why Python is so famous.
तो उसकी इज्जत कब आएगी? जब यहाँ अपनी इज्जत जाएगी प्रैक्टिस के टाइम पे। यस, तो ये तुमको समझ में आए। दिस मेन क्लास टेल्स हाउ द मैप रन, हाउ मैप विल रन और फंक्शन, एंड हाउ रिड्यूसर विल रन और फंक्शन। ठीक है ना? अब मैं सीडी करके वापस पीछे जा रहा हूं, तुमको दिखा दिया जो दिखाना था। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू मेक यूज ऑफ these three classes which is in this folder, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? एक जावा का एक आर्काइवल बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, तुम लोग अभी डाउनलोड करने के लिए हाइव का टारबॉल डाउनलोड किया था ना, मेरे को भी देखने का है, मैंने आज तक शायद फायर नहीं किया, आज कर लिया, क्योंकि मालूम रहती कुछ चीजें तो अपन देखते नहीं ना। देखा तुमने? टार इज आर्काइविंग यू। अब इसको ये पता है क्या? देखते क्या गाली देता, मालूम पड़ जाएगा। ओ माय गॉड, सो नाइस, मैनिपुलेट्स जावा आर्काइव। तो अब ये क्या बनाएगा? जावा का आर्काइवल, so that we can process some data with that, isn't it? Exactly. So let's, यहां पे देखो लिखा है jar, मतलब create verbosely, forcefully word count dot jar। तो वो क्या बोल रहा है कि क्लासेस किधर है? मैं बोला ये फोल्डर में है। देन इट इज आस्किंग मी, अच्छा बनाने के बाद ये तेरी डॉट जार कहाँ रखूं? तो मैंने इसको डॉट डाल दिया इधर, पेरेंट डायरेक्टरी में रख दे। सी, कम्युनिकेशन, isn't it? तो उसने बोला रख दिया, एकदम स्पीड में। सी, रख दिया। तो तुमने आज एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, मतलब वो काम जो कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, ये फलाना अमका एंड डिमका ये सब मिलके जो करते हैं ना, तो वो काम बटा हुआ होता तो दिखता नहीं, किसी को समझता नहीं, या किसी को नहीं पता। बोला हाँ पता है, वो काम उन लोग के पास है, हमारे पास नहीं है। फिनिश। That's how it is. So they do the coding and testing and blah, blah, blah. So now we have to fire this, isn't it? So what I'll do is I need some data set. Data set, data set, data set. यहाँ पे यार data set का वो कुछ भी नहीं है। ठीक है नसीब, let me see. चलो ये इवेंट लॉग को ही फायर कर देते हैं कि नहीं? अदूब fs-ls। लेकिन तुम कुछ अच्छी अच्छी चीजें वो करो यार, कोई बुक्स लो और बुक्स के अंदर से कॉमा ये वो सब निकाल दो। अगर तुमको जावा आता है तो तुम जावा में कोड लिखोगे और वो एब्रीविएशन ये सब निकालोगे, जो कुछ भी कचरा है अंदर से सब निकाल दोगे, यू विल गेट प्योर वर्ड्स। सो आई वुड लाइक यू टू डू दैट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यू विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज, है ना? फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, and that same job Java can do it in a jiffy, in terabytes and petabytes of data. Okay, okay, now let's go to user ubuntu। ठीक है, हमको फाइल का नाम चाहिए, server log। yes, I got it। so this is the name of that file which we are trying to process। अब सिंटैक्स यहाँ पे बना बनाया है, लेकिन एक काम करते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए। Hadoop, I'm asking jar to process, तो वो मुझको पूछ रहा है ना where is the jar, so I am saying यहीं रखी हुई है देख। ओके, अब इस जार के अंदर प्रोग्राम कौन सा हमको यूज करना है? ये वाला वर्ड काउंट, isn't it? तो ये कैपिटल में है ना, मेन क्लास, तो हमने उसको बता दिया मेन क्लास। अब वो पूछ रहा है डेटा, इनपुट डेटा, दैट मीन्स this is that input data। now it is asking me output। output is either you can say output or you can say result or you can say distilled data। मैं तो इंटरव्यू में डिस्टिल्ड डेटा बोलना ज्यादा पसंद करूं, थोड़ी इज्जत कमाने के लिए। ये क्या है चिल्लर आउटपुट एंड ऑल दिस, distilled data। okay, so once that is done, job is created,
and we are getting it processed. लेकिन कुछ भी बोलो, मैप प्रोड्यूस मगजमारी वाला काम है कि नहीं? बहुत मगजमारी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। गेटिंग द पॉइंट? देखो फर्स्ट टाइम फेल हो गया इधर, माइक्रो इंस्टेंस 5 MB की फाइल है यार, हो गया 100%। सेकेंड टाइम सक्सेसफुल, गुड लक। ओके, इट अटेम्प्ट्स, वो कभी तुमको पूछेंगे ना कि यान कितनी बार री अटेम्प्ट करता है, तो बोला 3 टाइम्स। इट अटेम्प्ट्स ओनली 3 टाइम्स, थर्ड टाइम इट गिव्स अप। ओके, सॉरी, फोर्थ टाइम इट गिव्स अप। ओके, अब जब आएगा तो प्रैक्टिस करके तुमको पता चल जाएगा। तो वो जब गिव अप करता है तो उसकी जो टिकट है वो किसको जाती है, मतलब किसका फेलियर, किसका फॉल्ट है वो। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे पास बेंचमार्किंग रिपोर्ट है कि भाई मेरे क्लस्टर का कोई फॉल्ट नहीं है, तो किसके पास जाएगी वो? एप्लीकेशन टीम के पास जाएगी वो। इट इज देयर फॉल्ट। तो बैम्बू सेशन किसका होने वाला है? उनका होने वाला है। तो वो लोग क्या बोलेंगे? उनके पास एक ही चीज है बोलने के लिए, हमने टेस्टिंग किया था, उधर सब बराबर चल रहा था, प्रोडक्शन में फेल होता। तो कुछ भी बोल भाई, डंडे तू ही खा, मैं बैठा हूं चुपचाप मेरी बेंचमार्किंग रिपोर्टिंग के साथ। इसलिए रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? यू हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स। व्हाई? जस्ट टू टेल दैट इट्स नॉट माय फॉल्ट। रिपोर्ट किसके लिए होती है? याद रखना इस पॉइंट को। कुछ लोग है ना, रिपोर्ट, अरे यार बहुत मगजमारी रिपोर्ट बनाने का। अरे रिपोर्ट ने तो तेरे को बचाई, नहीं तो फंस गया होता तू। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू थिंक इन आवर फील्ड। नाउ लेट्स कम बैक। अब हमने क्या किया? मैप रिड्यूस से बनाया ना। अब हम लोग हाइव से क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे जो हमने मैप रिड्यूस से किया। यहां दिख रहा है तुमको, क्रिएट टेबल, ये वाला। ओके, ओ, ये बैम्बू सेशन वाले काम है। सो व्हेन यू मेक सच अ मिस्टेक, सी लिनक्स के प्रॉम्प्ट पे तुमने ये पेस्ट कर दिया, तो R&D में चलता, स्टेजिंग में चलता, प्रोडक्शन में बैम्बू सेशन। ओके, हाइव, देखो मैंने फर्स्ट लाइन पेस्ट किया। नाउ इन पाथ, हमने पिछली बार लोकेशन यूज किया था, अभी देखो इन पाथ। ओके, लोड। तो ये फाइल अपनी जगह पे है या नहीं? टोटल साइज बता रही है कि है। ओके, वर्ड ग्रुप बाय वर्ड, वही वर्ड काउंट है ये। ओके, हैव अ लुक, सिलेक्ट वर्ड काउंट वाइल्ड कार्ड फ्रॉम डॉक। तो ये जो जो लोग ये सीखते हैं ना हाइव, दे लर्न इट विद इन अ वीक्स टाइम, विद इन अ वीक्स टाइम। एंड नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेड। अभी हमने जावा के लिए कितना टाइम लगाया था, और इसमें देखो 4 लाइन में वही सेम काम हो रहा है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। So is it good to write 60 lines and get your job done, or 4 lines? What do you say? तो इसीलिए गेट यू में जब मैं गया था ना, तो वहां जावा नहीं दिखा अपने को, दिखा क्या? बिकॉज नो बडी डज दैट। गेटिंग द पॉइंट? उनको आजकल जरूरत पड़ी तो वो पाइथन यूज करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। देखो क्या उल्टी किया इसने, इसकी मरण हो गई। फेल, जीरो फेल। जीरो फेल का मतलब टास्क विद मोस्ट फेलियर फोर ब्ला ब्ला ब्ला।
Let me scroll and check. Nowadays, AWS is getting slower and slower, yeah. I think so. पहले पहले माल बेचने के लिए बहुत मस्त चलता था. मल्टी नोड क्लस्टर पे ये फेल नहीं होता, सिंगल नोड पे होता है, बिकॉज कुछ ज्यादा ही वर्कलोड डाल देते हैं हम लोग. ओके, वो भी माइक्रो इंस्टेंस के ऊपर. सो इट डज. Execution error. Let me check. I am not so sure. So let me check. fs hyphen ls user. Oh, Ubuntu. अपनी जो फाइल थी ना इधर सर्वर वाली, वो कहाँ गायब हो गई? वो यहाँ है, यहाँ. सी, यहाँ पर भी नहीं है. इट इज सपोज टू बी हियर. ओके, हाइव में होगी. यहाँ आया, ऑफ कोर्स. दिस इज हियर, इट इज. चलो देखते हैं, तुम्हारा भी एक टेस्ट लेते हैं. यू टेल मी. I actually kept this file over here in Ubuntu. It is supposed to be here. The question is, why is it here? उसका आंसर याद रखो. ट्रेडिशनल सिस्टम में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत स्टार्टिंग में है ना, तुम्हारा डे 3 डे 4 होगा. इन ट्रेडिशनल सिस्टम, सैंडबॉक्स के ऊपर जो डेटा होता था वो प्रोसेसिंग के लिए बाहर जाता था, प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर. तो इन लोगों ने वही कल्चर फॉलो किया है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट डेटा विच इज मूविंग, इट इज जस्ट द मेटा डेटा. ओके, ये अपने सिंगल नोड के टाइम पे मैंने बताया था, तुमको प्रूव किया था, दिस इज जस्ट मेटा डेटा, रिमेंबर दिस. सो उसने क्या किया, मेटा डेटा को यहाँ से मूव किया और कहाँ डाल दिया? हाइव वेयर हाउस डॉक, बिकॉज दिस इज वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट. ओके, विच इज अभी मतलब नए हाइव में ऐसा नहीं होता है. ओके, डोंट वरी. बट ये पुराना कॉन्सेप्ट है, हडूप 1 था, उसमें उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट रखा था जो बकवास था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये फाइल यहाँ आई कैसे, वो पता चला. प्रोसेसिंग करने के लिए उसने यहाँ लेके आया उसको. सो सपोज आई वांट टू डू द प्रोसेसिंग वंस अगेन, आई विल हैव टू कॉपी दिस लोकेशन. आई हैव टू कम बैक हियर एंड इन पाथ, ये दिख रहा है तुमको? ओके, काम करेंगे, क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं. ओके, लेट्स फायर अगेन. ये माइक्रो इंस्टेंस के ऊपर डाउट है मुझको एक्चुअली. आगे जाके जब हम लोग क्लाउडेरा में जाएंगे ना, देखना एकदम स्मूथली चलता है हाइव वगैरह. ओके, हाँ, डॉक. तो इसको रीनेम कर दिया जाए, है ना, वो अच्छा है कि ड्रॉप किया जाए. ठीक है, यहाँ भी डॉक्स डालना पड़ेगा ना फिर. ओके,
आई थिंक ये बीच में आ गया ना इधर, ये भी फेल ही होगा शायद। हाँ इधर सी, ये तो सक्सेस बता रहा है। नहीं, टाइम स्पेंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, बिकॉज वाइल राइटिंग इट डजंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना। सी, वेयर हाउसिंग, क्या है ना इधर। सो इट डज, अभी यहाँ से उठा के उसमें डाल दिया उसने, देखा तुमने, डॉग से उठाया और डॉग्स में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वो कल्चर फॉलो कर रहा है उसको। इट डज दी वर्ड काउंट। ओके, तो एक काम करेंगे, फटाफट पिक पे जाएंगे क्योंकि अभी अपना एसक्यूएल वगैरह बाकी है। नाउ लेट्स कम बैक टू अपाची पिग, इंस्टॉल। क्योंकि मेन मेन जो कंपोनेंट है वो हमारा, जो मेन कंपोनेंट है वो एकदम डी एंड में आएगा, दैट इज EMR, Amazon मैप रिड्यूस, नहीं, इलास्टिक मैप रिड्यूस, EMR। आई डिड दिस अंटार ऑल्सो, नो, यस आई डिड। मूव किया जाए। ओके, अभी वैसे मार्केट में पिग ज्यादा यूज नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को रेज करना चाहिए, दैट इज, ये मैंने बैश आरसी में एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसका आंसर, because pig does not have its own server, it only has client, and it uses the server of MapReduce. It does not use the, but it doesn't have its own server. So what about Hive? It has its own server. ठीक है ना। अब ये यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझको, डॉक्स। एक मिनट पहले देख लेते। warehouse, this is empty. Okay, copy user Hive, बस इसमें और कुछ नहीं करना है हमको except for path. So I'm copying this. पहले हम लोग इसको ज्यादा टाइम देते थे, बट नाउ वी नॉट गिविंग टू मच टाइम बिकॉज nobody is asking also, just for you to understand. Okay, now बचपन में सुना होगा ना पिग ग्रंट्स, तो यहाँ पे देखो इसका प्रॉम्प्ट है ये grunt, isn't it? So let's copy and paste this line, load server log.log. Okay, अब इसने लोड किया कि नहीं वो देखना है, किया किया, बच गए। Okay, let's go to the last and final. अब देखो ये जो डंप वर्ड है ना, डंप, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम डेटा वेयरहाउसिंग। वो डंपर होता है ना, डंपर, एक गाड़ी आती है डंपर, सी, दिस इज द जॉब आईडी नंबर 5, रनिंग जॉब R5। तो अब तुमको ये पता चल गया कि हाइव हो, मैप रिड्यूस हो या पिग हो, इट डजेंट मैटर, इट यूजेस द मैप रिड्यूस। यहाँ पे देखो लॉन्चर, आया समझ में, परफेक्ट। तो पिग ने तो बराबर फटाफट कम कर दिया अपना, मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द पाथ। ओके, so word count, you saw word count actually in pig, hive and map reduce. Okay, now you will see the word count in python, हम लोग python में भी word count करेंगे, अभी अभी नहीं,
कुछ क्वेश्चंस है जो मैं तुमको रेज करूंगा टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. बट बिफोर वी गो देयर, नाउ क्विकली वी विल फिनिश दिस बाय data ingestion. So let's come down. Perfect. अब देखो यहाँ पे है ना, आई एम इंस्टॉलिंग अ MySQL सर्वर, MySQL क्लाइंट. पहली बात तो ये बिल्कुल भी ना प्रोडक्शन ग्रेड है ना इंटरप्राइज ग्रेड है. ओके, दिस इज प्योरली ओपन सोर्स, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस. आगे जाके हम लोग इंटरप्राइज देखेंगे और व्हाट इज द डिफरेंस वो समझेंगे, और प्रोडक्शन देखेंगे, दोनों भी देखेंगे. डोंट वरी. इनफैक्ट मुझको तो कभी कभी लगता है प्रोडक्शन ज्यादा इजी है, ये ओपन सोर्स तो पेन इन द रॉन्ग प्लेस बन जाता है कभी कभी. So we have installed the server, MySQL server and MySQL client on the same machine. You're trying to understand the power of Linux, isn't it? You can do the complete ecosystem on only one machine. Only one machine. अब ये जो है ना, ये डेटाबेस है RDBMS, जिसकी हम हमेशा बात कर रहे थे कि RDBMS का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले क्या होता है, स्कीमा बनता है, बाद में डेटा आता है. तो वो देखोगे तो बिलीव करोगे ना, अभी तक सिर्फ सुनते थे. तो अभी मैंने आई एम ऑन द प्रॉम्प्ट ऑफ माई एसक्यूएल, यू कैन सी दैट. ओके, शो डेटाबेसेस, ये तुम लोग घर पे फायर कर लेना. आई एम क्रिएटिंग अ डेटाबेस कॉल्ड JingaDB, एंड इन दिस JingaDB आई हैव टू गिव द प्रिविलेजेस. ओके, तो ये जो है ना, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वर्स्ट प्रैक्टिस है टू गिव द प्रिविलेजेस टू रूट. एंड वैसे भी हम रियल टाइम में लोकल होस्ट पे कभी काम नहीं करेंगे, बट फॉर योर लर्निंग पर्पस इट्स ओके. सो अब हमने जो डेटाबेस बनाया उसका नाम क्या है, दिस वन, JingaDB, isn't it? अभी तक डेटा की बात किया क्या, नहीं ना. अब सिर्फ डेटाबेस बनाया है तो उसको बताना पड़ेगा ना, इतने सारे डेटाबेस है कौन सा यूज करना है. JingaDB. तो उसने बोला यस आई एम यूजिंग JingaDB. In JingaDB, do we have any tables? So it is telling no, it is an empty set, you don't have any tables. So we have to create table, isn't it? So we have to create schema. बात एक ही है, तो वो समझ में कैसे आएगी, बराबर है. तो उसके लिए आई विल फायर शो टेबल्स फर्स्ट. तो ये टेबल का नाम है किस, ये टेबल इन JingaDB. ओके, उसका नाम क्या है, यूजर डेटा. लेकिन ये जो टेबल है इसका स्कीमा तुमको देखना है. अब टेबल तो दिख गया, स्कीमा किधर है. तो आई विल से डिस्क्राइब यूजर डेटा, ताकि तुमको स्कीमा देखने मिले. इसका मतलब ये होता है, इसकी जो स्ट्रिंग्स यहाँ पे तुमको फील्ड दिख रही है, ये फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, कंट्री, सिटी, स्टेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है सब. इसमें डेटा डालेंगे तो दिखेगा. तो डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. तो आई हैव इट ऑन S3, आई एक्सट्रैक्टेड दैट डेटा, and that data is this particular file. Okay, user data.txt. Okay, you want to see how does it look like, tail user, क्या दिख रहा है तुमको, कॉमा सेपरेटेड. क्या दिख रहा है, कॉमा सेपरेटेड. क्या दिख रहा है, कॉमा सेपरेटेड भाई. CSV, excellent, that's what we call it, CSV. तो यहाँ पे ना CSV नहीं लिखा है, टेक्स्ट लिखा है जानबूझ के. ओके, नाउ आई एम कॉपिंग दिस CP कमांड से in this particular location. Why? Because MySQL जो डेटाबेस बनाता है ना, वो ये लोकेशन पे बनाता है. वो एक होता है ना कि एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से जाना है और एक बैक एंड से जाना है. सो आई एम कॉपिंग दिस टेक्स्ट फाइल फ्रॉम लिनक्स. आया समझ में, क्योंकि इसीलिए डेटाबेस में लिनक्स सीखना जरूरी होता है. तो वो कॉपी कर दिया है हमने. ओके,
which means कॉपी कर दिया का मतलब ये नहीं होता है कि उसको लोड कर दिया अंदर स्कीमा के अंदर. ओके, so I just punched in the password. I'm asking the dumb system to use this particular database because it does not know which one to use. Now this is not going to work, we know that, but let's have a look. We are saying load data in file user data.txt into table user data. तो उसने मुझको बोला कि देख दोस्त, ये जो तेरा पैरामीटर है ना, secure file privileges, that this is not allowing me to do so. Okay, so मैं इसको बोलता हूँ ठीक है, I want to see this variable. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैल्यू के अंदर ये पाथ है, मतलब इसको अलाउड है, यहाँ पे तू रखेगा तो मैं कर दूंगा. तो मैं बोला ठीक है, इस झंझट से निकलना है मुझको. What I'll do is I will go to the configuration file which is kept in the etc folder. So I will exit from here and I will jump to this cnf matlab configuration. So in configuration, I'm scrolling right at this user. Okay. And I'm pasting this null value. Null value का मतलब ये है किसी यहाँ पे है ना, ये कोट्स दिख रहा है तुमको, इसके बीच में कोई पाथ दिया है क्या मैंने? कोई पाथ नहीं, पाथ की झंझट से बाहर आ गया. देयर इज नो वैल्यू, null value. Okay, I saved it. So when I save it, it is saved in the hard drive. So I have to reload that. So let's restart the daemon of MySQL. Restarted the daemon. Let's log into MySQL database. And then ask the dumb system to use JingaDB. Okay. Now the question is, what is this set SQL mode? Again, the null value. Okay. This is me to get rid of version conflict. Why? Because मेरा जो डेटा है और ये जो वर्जन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, MySQL का वर्जन और मैंने जो सिंटैक्स अभी तक फायर किया, अगर वो इनकम्पैटिबल है तो इट विल टेक केयर ऑफ दैट. सेट एसक्यूएल मोड इज इक्वल टू नल, मतलब उसके पीछे पड़ मत, अब मेरे को मेरा काम करने दे. इन अदर वर्ड्स, ओके. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस इन द प्रोडक्शन, बट फॉर लर्निंग, फॉर यू टू प्रैक्टिस, फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अभी मैंने तुमको कुछ चीजें बतानी थी कि ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बता दिया. कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमको नल करनी है, बता दिया. हमको डेटा टीएक्सटी फाइल से हम लोड कर सकते हैं और हम लोग एसक्यूएल से भी लोड कर सकते हैं. ये दिख रहा है तुमको जो अभी करूंगा मैं? तो जो जो बेसिक्स होता है इससे कवर हो जाता है, बाकी का आगे हम करेंगे, डोंट वरी. ओके, सो नाउ आई एम लोडिंग व्हाट, वो जो कॉपी किया था ना यहाँ पे, ये फाइल, दिस फाइल. ओके, आई एम लोडिंग दैट डेटा which is comma separated into table. Which table? User data. ठीक है ना? तो ये बोल रहा है तेरे पास है ना 1900 ब्ला 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 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, फाइल के अंदर. देखा, उसने लोड कर दिया. कैसा लगता ना, कंप्यूटर्स आर सो फास्ट, ऐसा लगता अपने को. यस, वी आर फास्टर देन द कंप्यूटर्स, दे हैव येट नॉट रीच्ड अस, दे कैन नेवर. ओके, नाउ लेट्स fire. But before I do this fire, I'm going to ask you. हमने पहले टेबल बनाया, सॉरी डेटाबेस बनाया, उसके बाद टेबल बनाया, उसमें स्कीमा डाला, स्कीमा के अंदर क्या किया, डेटा डाला. तो डेटा लास्ट में आया कि नहीं? इस केस में डेटा लास्ट में आया. अच्छा, हमारे पहले वाले केस में, हाइव वाले केस में डेटा बीच में आया था. ओके, अब मैं क्वेरी फायर कर रहा हूं. सही, तो मेरा क्वेरी का रिटर्न आया कि नहीं आया? नाउ आई एम लिमिटिंग टू 10, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो जरा अच्छा दिखेगा दिखने के लिए. ठीक है, काम चला लो. See how it looks like. But when you
I don't know if I can make it smaller by, नहीं I can't, जान दे कुछ और हो जाएगा फालतू में. Let's keep it as it is. Oh, so habitual. All right, so now I'm going to quit. Why? Because मैंने कॉमा सेपरेटेड किया ना. अब क्या करना है, ये वाला करना है फाइल SQL. See, I downloaded the SQL file which has 10,000 rows. Okay, तो लास्ट में उसका देखो फॉर्मेट क्या है, which means this file is actually taken from a database and we are going to load this in the database. However, in order to do that, I have to redirect to JingaDB. See, you can redirect in any other database also by after creating. Okay, but I didn't want to get into that jhanjat. That's the reason I am loading in JingaDB. तो यहाँ पे देख रहे हो तुम redirect. It is asking me for a password. MySQL is asking me for a password. Why? Because यहाँ पे देखो client कौन है? MySQL is the client. We are saying user root. Okay. Password I will provide. Database का नाम क्या है? JingaDB. This particular file has to be redirected in this particular database. तो बोल रहा पासवर्ड दे, मैं रीडायरेक्ट कर देता हूं. तो मैंने बोला ले पासवर्ड कर दे, उसने कर दिया. सी, अब तुम मेरे को बोल रहे हो कि दिखाओ कि किया कि नहीं किया. ठीक है भाई, दिखा देता हूं. शो डेटाबेसेस से कुछ फायदा होने वाला नहीं है. यूज जिंगाडीबी. ओके, अब शो टेबल्स. अब मेरे को दो टेबल दिखना चाहिए ना, एक पुराना वाला एक नया वाला. तो पुराना वाला कौन सा है? यूजर डेटा. और नया वाला कौन सा है? यूजर डिटेल्स. ओके, डिस्क्राइब यूजर डिटेल. डिस्क्राइब मतलब मेरे को उसका स्कीमा देखने का है. डेटा देखने का बात किया क्या मैंने? नहीं ना, मैंने सिर्फ स्कीमा. तो उसने बोला इसमें स्टेटस है, पासवर्ड है, जेंडर है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूजर आईडी, ब्ला 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 है. ओके, और ये 100 कुछ ज्यादा हो जाएगा. आई कीप इट 10. ओके, यू कैन मेक इट 100 इफ यू वांट. वैसे उसमें 10,000 रोज है ना. लुक्स गुड ना? नॉट सो गुड बट इट्स ओके. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वी आर गोइंग टू टेक अ बैकअप. तो बैकअप में मैं माई एसक्यूएल डंप दिख रहा है, इधर डंप. ओके, ऑल डेटाबेसेस रीडायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फाइल. तो लास्ट एक्सटेंशन क्या है देखो, SQL. ओके, तो तुमको अगर चाहिए, इफ यू वांट, यू कैन टेक अ बैकअप, ओपन अ न्यू मशीन एंड रीस्टोर ऑन दैट न्यू मशीन. ठीक है, बैकअप हो गया. तो ये दिख रहा है रीडायरेक्ट, इससे बैकअप हुआ है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये भी रीडायरेक्ट है, दिख रहा है तुमको. तो ये बैकअप है और ये रीस्टोर है. वैसे प्रोडक्शन में ये सब ऑटोमेटिक है. इतना भी करने को नहीं मिलेगा तुमको. तुमको अफसोस होएगा कि यार वो प्रैक्टिस किया होता थोड़ा अच्छा रहता था, कम से कम कुछ तो देखने को मिलता था ना. जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन, उसमें सब ऑटोमेटिक है. हाँ, हाथ लगाने को नहीं देते अपने को, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक बैकअप होगा. 1 2 3. तो वो भी तुमको देखने नहीं मिलेगा, डोंट वरी. सो नाउ आई हैव डन बैकअप एज वेल एज रीस्टोर. ठीक है ना. नाउ आई वांट टू कॉपी माय RDBMS डेटा टू हडूप क्लस्टर. उसके लिए क्या लगेगा मुझको? स्कूप लगेगा. SQL का SQ और हडूप का ऊप. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, दिस इज हडूप का ऊप, स्कूप. तो जब मैं नया नया था ना, जब भी स्कूप सुनता था ना, तो वो आइसक्रीम का स्कूप मेरे दिमाग में बैठ जाता था. नहीं, लिटरली. तो थोड़ा इंग्लिश अच्छी थी बोल के वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया था कभी कभी. और HDFC, क्योंकि बैंक अकाउंट होता था हमारा. HDFS बोलने को ही नहीं जमता था. HDFC.
HDFC, अरे बैंक है, HDFS बोल। तो हालत खराब हो गई थी मेरी, और वो मैप रिड्यूस ने तो जान निकाल दिया था मेरी। यस, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो जो बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। खाली थोड़ा फोकस करना है बस। आई डाउनलोडेड दिस, ओके। अनटार करेंगे एज यूजुअल, तुमने देखा ना, पेग, हाइव, हदूप, एवरीथिंग डाउनलोड अनटार। तो तुम्हारा ये जो है ना, योर फियर फियर ऑफ ओपन सोर्स विल गो अवे। तुमको एक ये कॉन्सेप्ट एकदम फिट हो जाता है भेजे में। ओ यार, डाउनलोड करना है, अनटार करना है, मूव करना है, कॉन्फ़िगर करना है, स्टार्ट करना है, फायर करना है। हो गया, 6 चीज में खत्म। ओपन सोर्स, isn't it? However, in production it is enterprise, so वहां का लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यू विल गेट टू सी दैट, बट इसका डर निकल गया, वही काफी है। ओके, वी हैव डन अनटार, मूव, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हो गए। तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे, अगर वो प्रोडक्ट भी चल रहे होते ना तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। IBM का एक प्रोडक्ट था, उसका नाम था जेकाल, उस वक्त चलता था। फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे एक्चुअली, नाउ दे आर ऑल फेल्ड। तो जो फेल हो गए, भूल जाओ उनको। ओके, सो आई हैव पेस्टेड दिस इन bash rc। ओके, उसको पता है कि भाई स्कूप कहाँ पे रनिंग मिलेगा। वेन एवर आई फायर द कमांड इन माई एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड वेयर इट इज। ओके, now let's come back here and get into the configuration. Oh, okay, let's go back. टेम्पलेट, टेम्पलेट को क्या करना है, उसको रीनेम करना है। स्कूप environment डॉट sh पे जरा ध्यान देना है। ओके, और तुमको इसका आंसर करना है भी। नोटिस करने वाली चीज देखो यहाँ पे, एक्सपोर्ट हदूप कॉमन होम, विच इज फॉर HDFS, बिकॉज डेटा वहां पे रखा हुआ रहेगा। एक्सपोर्ट हदूप मैप रेड होम, मतलब मैप रिड्यूस का जॉब जो है ना, तो यहाँ पे याद रखना है, स्कूप में मैप रिड्यूस नहीं बोलना है, मैप जॉब बोलना है, सिर्फ मैप जॉब। इन स्कूप इट ओनली रन्स अ मैप जॉब, हाउएवर इट रिक्वायर्स द इंजन ऑफ मैप रेड, इजंट इट? तो उसका एड्रेस इसको चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये एचबेस, हाइव और जू कीपर यहाँ क्या कर रहे हैं? यू हैव टू टेल मी। मीनवाइल आई एम पेस्टिंग दिस। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझको HDFS का जो हदूप है वो मिल गया, कॉमन हदूप कॉमन। मैपरेड के लिए वो भी मिल गया। जू कीपर इस मशीन पे नहीं है, एचबेस नहीं है, लेकिन हाइव तो है। हाइव इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर स्कूप। इन शॉर्ट, मुझको अगर समझो RDBMS से टेबल्स ला के डायरेक्टली इसमें डालना है, हाइव में, आई कैन डू दैट। I want to throw it directly in HBase. Yes, I can do that. And to do that, I will need orchestration, which will be done by Zookeeper. ठीक है, तो अभी आगे के टॉपिक्स क्लाउड एरा पे हम सब देखेंगे। अभी खाली इतना समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए, so that we can close chapter 1 today. Now, because it's a database, every database has some connector, जिसको JDBC, ODBC भी बोला जाता है, ड्राइवर्स बोला जाता है, प्लगइन्स बोला जाता है, और कनेक्टर बोला जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी होगा तो एक्टिव एक्स एंड डायरेक्ट एक्स भी बोलते हैं, बट इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, और ओरेकल ने इसका नाम रखा है इन्फिनी बैंड। क्या नाम रखा है? ओ, सी, कनेक्टर मुझको लाइब्रेरी में डाउनलोड करना चाहिए था। सी, ओके, लो हो गया डाउनलोड। लेट्स अनटार। तो फिर मुझको ये कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दी अनटार।
ओके, बिन, बिन में क्या है, स्कूप की बाइनरी है, देखना है तुमको, देख लो। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, इजंट इट? तो तुमको याद ये रखना है कि वी नेवर डू एक्सपोर्ट, वी ऑलवेज डू इम्पोर्ट। तो तुम बोला इन माय ऑर्गेनाइजेशन द सिनेरियो नेवर अराइज्ड वेयर वी हैड टू export, we always used to do imports, खत्म। that means you are coming from production। अगर तुमने बोल दिया आई नो इंपोर्ट भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, इंपोर्ट पे भी एक्सपोर्ट पे भी मैंने सब किया है, तो फिर तू प्रोडक्शन वाला नहीं है, तेरे पास बहुत टाइम है फालतू में वेस्ट करने को। ओके, स्कूप वर्जन है ना, ये फायर करेंगे तो तुमको ये देखने मिलेगा कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, सी दिस, इंडिया हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। यस, दैट्स व्हाई दिस डोमेन, इस डोमेन में तुमको सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडियंस ही मिलेंगे। कौन से डोमेन में? एनालिटिक्स, बिग डेटा, सबसे ज्यादा। खाली वो जो अथॉरिटेटिवनेस है ना, वो बहुत कम लोगों के अंदर है। अब वो भी हम लोग सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है, विच इज गुड। या इन अदर वर्ड्स व्हेन यू से इंडियन, इट इज साउथ इंडिया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक काम करते, पहले कॉपी पेस्ट कर देते, ये व्हाइट स्क्रीन पे सर दुखता है। सी हियर, आई एम सेइंग स्कूप, व्हाट इज स्कूप? माय क्लाइंट, प्लीज डू एन इंपोर्ट फॉर मी। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट। अच्छा, कनेक्ट करने के लिए उसको ड्राइवर लगेगा, कौन सा ड्राइवर? जेडीबीसी। अच्छा, ये जेडीबीसी कंपैटिबल ड्राइवर ऑफ माई एसक्यूएल होना जरूरी है। उसके बाद उसका ये जो एड्रेस है, यहाँ लोकल होस्ट लिखा है, इन रियलिटी इट इज ऑलवेज सपोज टू बी डीएनएस एड्रेस, ये पॉइंट याद रखना। ओके, कभी कभी क्या होता है, उनसे ये काम होता नहीं है, तो वो तुमको बोलते हैं क्रिएट अ सिंटैक्स एंड सेंड इट टू अस। तो तुमने सिंटैक्स क्रिएट किया, उस वक्त खाली याद क्या रखना है, डीएनएस एड्रेस चाहिए। And then you will say, this is the database I would like to connect. On that database, my username is going to be root. I will provide the password on a fly. You can actually keep a password in a file, keep it in a file, and that file का path यहाँ पे डाल के उसको pick किया जा सकता है। Okay? Now, table कौन सा है? User data। अच्छा, इसके लिए सिंगल मैप जॉब रन करने वाला ये, तो टारगेट डायरेक्टरी कौन सा है जहां पे उसको रखना है HDFS के ऊपर? उसका नाम होगा टेबल्स यूजर डेटा 2। ओके, और वो सीक्वेंस फाइल, एज सीक्वेंस फाइल, एक के पीछे एक, विच मीन्स देर आर मल्टीपल अदर वर्जन लाइक एवरो, ऐसे बहुत सारे हैं। नाउ बिकॉज दिस प्रोसेस इज नाउ डेज डन ऑटोमेटिकली, ओके, यू विल गेट टू सी दैट, डोंट वरी। सो ये सिंटैक्स वाला झंझट भी गया अपना, लेकिन अपने को ये अभी समझ में आ गया कि भाई स्कूप से जब मैं डेटा लाऊंगा तो उसको इंपोर्ट बोला जाएगा। तो डेटा मैं ला कहाँ से रहा हूँ, इंपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि मैं इसको माई एसक्यूएल से ला रहा हूँ, आरडीबीएमएस से। अगर मैंने इसको आरडीबीएमएस से एक्सपोर्ट किया होता, मतलब एचडीएफएस से आरडीबीएमएस में डालूंगा, देन आई विल कॉल दैट एक्सपोर्ट, विच नो बडी डज, ओके, इन द इंडस्ट्री। सी, डेवलपर ने बना के रखा है लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा है। दैट्स हाउ इट इज। इट्स लाइक द 8th फ्लोर इन अ बिल्डिंग, जो बिल्डर बना के रख देता है उसको कोई, वो फायर ब्रिगेड का एरिया बोलते हैं ना, कुछ तो भी ऐसा बोलते हैं उसको, nobody uses that। ओके, जीडीबीसी, माई एसक्यूएल, डीएनएस समझ में आया, डेटाबेस समझ में आया, यूजर नेम, ओके, टेबल का नाम है सिंगल मैप जॉब, क्योंकि सिंगल नोड क्लस्टर है, दैट्स रीजन। सो लेट अस, refuge area, yes। see, as I told कि we are going to provide the password यहाँ पे है ना, so now I'm supposed to give the password, okay।
could not load database driver, blah blah blah. Driver का issue आया. Could not load driver. ड्राइवर गलत जगह डाला क्या? Okay. So what we'll do is अपना IP address here it is, internal DNS. So let's copy and paste. Now this is user detail wala, just for me to check. तो फिर इसका मतलब ड्राइवर का ये इशू. क्या भाई अंटार नहीं हुआ था क्या? Connector. Let's see. किधर गया वो? MySQL blah blah blah. ठीक है. What nonsense. अंटार नहीं हुआ था क्या? Unbelievable यार. चलो देखते पता चल जाएगा. Okay. So no columns to generate for class driver. Let's check this. Okay, let's see. User. क्या था उसका path? Local scoop library. Oh, here it is. Male, can't believe. Caused. Let's check this.
This is open source. Okay. It's part and parcel of it. That's the reason we never ever suggest open source, because you have to remember a lot of things. अपना सिंटेक्स तो बराबर है. Yes. Yeah, untar is done. That's the reason we have that jar file. It requires just this jar file. Issue इसका ही दे रहा है वो ऐसे तो. Maybe this driver is not compatible with अभी जो हमने इंस्टॉल किया ना ये वाला, इसके साथ compatible नहीं है. अभी ये अपने को R&D करना पड़ेगा इसके पीछे. इसमें स्कूप का फॉल्ट नहीं है. स्कूप इज okay. Let me check. This possibly is something to do with the driver only, because last packet sent successfully to the server was 0. The driver was not received. No, ports are open for this. Port is not an issue because I am doing it on a private network. और मैंने जो DNS एड्रेस डाला है वो भी प्राइवेट है, so that is also not an issue. Maybe the version of the driver. ठीक है. So what we'll do is I will check this little later. Next Saturday को मैं तुमको बताऊंगा इसको. Or when you are practicing, if it works, well and good. Otherwise, I will show it to you once again. लेकिन अब हम लोग जो है ना एक कॉन्सेप्ट है उसको निपट लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए. So we will finish that concept as well. Okay, and that is now. See, how many machines do I have? One is my Windows client machine, and the other one is a single node cluster. जिस पे हम लोग ecosystem check कर रहे थे. Okay, now there can be chances. एक मिनट, just remembered. Let me check. Okay, what we'll do is we'll do EMR quickly so that concept is clear. In order to do that, let me check where is my file. Okay, so एक काम करते हैं, डायरेक्टली जंप मारते हैं. अब मेरे पास देखो यहाँ दो मशीन है, एक सिंगल नोड क्लस्टर है और एक विंडोज का मशीन है. Now I am going to EMR. Here it is. So most likely you will also get to see similar screen. Okay. EMR serverless is now GA. Create cluster. अब जो है इसका जो टॉपिक है ना, ये
इधर करना बहुत जरूरी है, आज के आज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसके लिए ये बहुत जरूरी है. सो आई एम टेकिंग ओनली वन मास्टर. दिख रहा है तुमको, वन मास्टर. अच्छा, scale cluster nodes based on workload. If I want, I can select, but I'm not doing that. First of all, I don't need this version. Okay, I need the older version. तो फिर हम लोग अटक जाएंगे वापस से. So I'm taking this older version, which is 4.7.2. Logging also I don't need. And cluster mode also I don't need. There are two modes. One is a cluster mode. The other one is a execution mode. I need that step execution mode. तो स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में तुमको जो चीज नोटिस करनी है वो ये है कि जार फाइल अभी हमने बनाया था और प्रोसेस किया था, पिग से किया है, हाइव से किया है, स्पार्क से नहीं किया है, और अभी हम लोग स्ट्रीमिंग प्रोग्राम से करेंगे. स्ट्रीमिंग, हडूप स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि यू कैन यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पर्ल, C++ एंड पाइथन. ओके, सो हम लोग पहले C++ में भी बताता था मैं, बट वो यूजलेस है, कुछ फायदे का नहीं है, तो अभी सिर्फ हम लोग पाइथन में देखेंगे. ओके, मैपर, अब तुमको पता है व्हाट इज अ मैपर, क्योंकि तुमने क्या देखा था, क्लासेस देखा था. यू नो व्हाट इज अ रिड्यूसर बिकॉज यू सॉ द क्लासेस. यू नो व्हाट इज द पाथ फॉर द इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा. तो देखा, यहाँ काम आसान हो गया अपना. तो मैपर के अंदर आई विल नीड सम डेटा सेट, है ना. तो सॉरी, सम डेटा सेट नहीं, सॉरी, आई नीड द कोड. तो ये जो दिख रहा है ना, वर्ड स्प्लिटर डॉट py, तुम्हारे मूडल में होगी, डोंट वरी, यू विल गेट इट. दैट इज माय मैपर. एंड रिड्यूसर is the, see, if I want, I can write a file, text file, and I can store that file in S3, and I can give that path over here. Okay, now I just need to give the reducer. So किसी को पता है कि what will be the reducer? When you want to club all the files together, मतलब उसको reduce करना है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Compress. Any other word? Collect, merge, और कुछ? ए से आता है वो. That word is archive. ना, abstract. Append, not at all. Append has something, some other meaning. Shrink, no. What about aggregate? Aggregate. It is aggregate. Just spelling अगर गलत है तो बता दो. Now I want to process a data set. Now this is my data set, user data.txt. Then I want to keep that data set after processing in some folder. Okay. So I'm going to keep it here in this bucket, and I will give a name that is output. बड़ा नाम दूं, distilled
data. Okay. Terminate cluster. Why? When the job is over, you can terminate. मतलब ये होता है कि समझो मैं सुबह सुबह आया, मैंने ये प्रोसेसिंग को छोड़ा, ओके, अपनी चाबी घुमाया, गाड़ी में बैठा, घर पे चला गया, तो मुझको इसको बंद करने के लिए कंपनी में वापस नहीं आना है. It will automatically do the job. तो यहाँ पे ये बता रहा है हडूप स्ट्रीमिंग. अगर सपोज आई वांट टू डू दिस कमांड लाइन के ऊपर ना, if I want to, then I will have to put this argument, this one. The only difference will be, instead of S3, I will need to give the path of my output and input and blah blah blah. That's it. ठीक है ना? तो पहले हम लोग ये भी सिंगल नोड पे करते थे. But now because I want to ask you a question, that's the reason we'll do it here. So I'm taking M4 large क्योंकि डेटा सेट एकदम छोटा सा है ना, इसके लिए. ओके, जिसका नाम है my cluster. So let it be. Let's create the cluster. It is saying, यहाँ पे देखो नीचे, provisioning one M4 large. Okay, point number 1. Point number 2, if I want same cluster once again, I can say clone. The moment I say clone, it will clone similar cluster for me. ठीक है ना? मैंने जो steps दिया था वो यहाँ पर है, process करने के लिए. Okay, which is pending of course. So what I need to do now is I need to go to a new page of EC2 to show you कि मैंने उसको क्या बोला था, I want one more machine, that is M4 large. बराबर है, जो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है. दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो इसका मतलब ये होता है कि ये फेल हो गया. सी टर्मिनेटेड विद एरर्स. The requested instance M4 large is not supported and blah 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 in this particular availability zone. Welcome to Mumbai. Okay, so which means I will have to do it once again. Create cluster. I don't want this logging. Step execution. Okay, streaming program. तो जिन लोगों ने मिस किया उनका फायदा. Okay, here it is. This is my program, mapper program, aggregate. Input, data input. That is supposed to be some huge data set. Okay. अब उन लोगों ने M4 का सपोर्ट हटा दिया तो मैं क्या करूं? Okay, now let's go back. अब दिख रहा है तुमको ये डिस्टिल डेटा का इसने फोल्डर बना दिया, यहाँ पे ऊपर सक्सेस एंड पार्ट ब्ला 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 लिखा हुआ आ रहा है. तो हमको क्या करना है? We will once again give another name, that is output. Terminate, add, perfect. ये वर्जन जो है ना थोड़ा सा पीछे जाना है. ठीक है, so that's absolutely fine. कम वक्त थोड़ा बिल ज्यादा आएगा और क्या होगा. क्रिएट क्लस्टर. तुम मुझको कैसा पता चल गया एडवांस में कि वो फेल हो गया करके? बिकॉज यहाँ पे वो प्रोविजन हुआ नहीं ना. EC2 में प्रोविजन होना चाहिए ना उसको. सो इफ इट प्रोविजन हियर, दैट मीन्स इट्स डूइंग माई वर्क, अदरवाइज इट इज फेल ड्यू टू सम रीजन. ऑफ कोर्स विल कम टू नो व्हाट इट इज. अब क्या हुआ? The requested instance M4 extra is not supported. Requested availability zone, blah blah blah. तेरी तो M4 ही supported नहीं है क्या इसका? ठीक है,
No props. We'll take another one. And this time first we'll take this. Uh, ये तो है ना M4. So let's take C4. C4 large is better, isn't it? And then थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसके लिए. मुझको तो लग रहा है ये भी नॉट सपोर्टेड बोलेगा. But the moment it does it, I have to ask you a question. Okay, whatever it is, even if it takes time, it doesn't matter. Reducer में aggregate लिखना है ना हमको. Aggregate input output okay, terminate, add. Hopefully this works. Let's see. अभी तक C4 आया नहीं है. See, इसका मतलब ये भी फेल होने वाला है. हो गया. Okay, so what we'll do is just 1 second. मजा आ गया. See, when AWS makes some changes and you don't know that there's some change, so this is part and parcel of it. Okay, now I just want to check कि मेरा जो ये bucket है ना, इसमें I will need to go to S3 in order to find out. वरना यहाँ तो जिंदगी निकल जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Not supported बोलता रहेगा वो. See, I just came here to see whether this is in Mumbai or not. Okay, and it is in Mumbai. So if this is in Mumbai, I should not have a problem from S3. This is definitely, they have made some changes which we don't know. So let's aggregate. एक और ट्राई मार के देखते हैं. नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को वैसे भी स्कूप करना ही है अपने को. Oh, in output. See, I'm not supposed to have that folder here. Huh? I'm supposed to give the name, it will create itself. ये याद रखना है. Okay, syntax वगैरह सब बराबर है. Yes, aggregate, perfect. So let's go with M5 extra large. इसका default है. Termination cluster when it is idle after 1 hour.
Okay. In Mumbai data center, I guess. So let's take something else. अब ये तो तुम लोग को बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा अगर ऐसा होगा तो. It actually works here. I always used to do it with M4 large in this session. But now if they have made some changes. चलो ठीक है, no issues. ऑटो टर्मिनेशन ऑफ करना करेंगे तो अपना नुकसान है उसमें. कुछ करेगा नहीं और ऑटो टर्मिनेट होगा नहीं. It is going to be waste. See, if I choose this one, it automatically selects M4. तो या तो फिर अब तो जाना ही पड़ेगा ना इधर. Let's have a look what changes they have made. Okay. चलो एक लास्ट ट्राई देते. This is actually created for the data scientist. Suppose they want to process some data, तो उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. They just come here, show the bucket and fire. Process हो गया. अब ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज जो है हमारे इंडस्ट्री में एकदम नॉर्मल माना जाता है. एग्रीगेट. ओके. इनपुट S3 लोकेशन. आउटपुट again. Output. M5 extra large. उसका जो डिफॉल्ट है ना. See, this is using EMRFS consistent view. यहाँ पे disabled है. Isn't it? मतलब EMRFS is disabled. Let's see. EC2. This is the one. EMR. अब इसमें देखो EMR जो है ना 1C में डाला है. Getting the point? अब एक क्वेश्चन है. This is not sure whether it is going to do successfully or not, because हमारा जो Python का जो स्क्रिप्ट है ना ये थोड़ा सा पुराना वाला है. वर्जन 2 वाला है. अगर इसने जो इमेज उठाया इसके अंदर Python 3 है
and they don't have Python 2 version installed, then it's again going to fail. So I'm assuming that way. But ये लोग इतने बेवकूफ भी नहीं होंगे, इन लोगों ने कंपैटिबिलिटी डाल के रखा होगा. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको देखना है. यहाँ पे देखो, Amazon Linux यूज कर रहे हैं ये लोग. They are not using Red Hat, they are not using CentOS, they are not using any other operating system. See, configuring cluster software मतलब ये है प्रोडक्शन ग्रेड क्लस्टर वो खुद रेडी कर रहा है अपने खुद के लिनक्स के ऊपर. ओके, यानी मेरा जो चार्जेस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है ना, बिकॉज आई डोंट हैव टू पे लाइसेंसिंग टू रेड हैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो ईज ऑफ यूज है वो देखो. फॉरगेट अबाउट दैट कंपैटिबिलिटी, ईज ऑफ यूज. अब मुझको अगर HDFS का नेम नोड को एक्सेस करना है तो दिस इज द पाथ. दिख रहा है तुमको? रिसोर्स मैनेजर को एक्सेस करना है, दिस इज द पाथ, एंड सो ऑन. नाउ मेरे जो स्टेप्स है इसको ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबमिट करेगा, मेरे जॉब को सबमिट करेगा. तो जॉब सबमिट करने के लिए उसको सिंटैक्स फायर करना पड़ेगा ना, दिस वन. It will fire this syntax and get my job done. So we are hoping it does it. It doesn't take more than 7 minutes. Let's see. So let's go back to summary and see how much time. 2 minutes ho chuka hai abhi tak. 5 more minutes and we are done. Now it is saying running the step. ये दिख रहा है तुमको? Now either this is successful or it will fail. तो अगर फेल हुआ तो अपने को पता चलता है कि वो वर्जन की वजह से. ऐसा लग तो नहीं रहा है, but let's. But when it goes successful, what happens? डिस्टिल डेटा वो कहाँ रखेगा? S3 पे रखेगा. ओके, सो S3 पे कहाँ रखेगा? जिस बकेट में हमने उसको बोला है, दिस वन. तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा ना वो, आउटपुट का एक फोल्डर बनेगा. सी, अभी तक बना नहीं है. सक्सेसफुल होगा तो ही बनेगा. रनिंग स्टेप्स, स्टेप्स कंप्लीटेड मतलब सक्सेसफुल हो गया ये. और टर्मिनेटिंग दिख रहा है, टर्मिनेटिंग टोटल 4 मिनट लगाया इसने. ओके, विच मीन्स यहाँ पे अभी आउटपुट का डेटा और फोल्डर मिलना चाहिए. सो आई एम रिफ्रेशिंग. ये आया, सी आउटपुट, and here it shows this is your distilled data, this one, this partition दिखा रहा है ना. So if I want I can download, I can check what happens with this, but right now this is blocked, so it's okay, absolutely fine, but it is understood कि ये successfully हो गया. अब एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि अब जो मैंने प्रोसेस किया है ये एंटरप्राइज ग्रेड है कि प्रोडक्शन ग्रेड है? दिस वन, enterprise grade or production? It is production grade, not enterprise. Getting the point? That is power to you. तो जब तुम लिखते हो EMR आता है मुझको, okay, that means बहुत सारी there are other things also ना जो अभी हम लोग ओपन सोर्स पे करने वाले हैं. लेकिन एक क्वेश्चन है इसके अंदर. से फॉर एन एग्जाम्पल आई गो टू क्लस्टर. ओके, ये वर्जन की वजह से अपने परेशान हो गए हम लोग. बट इफ आई गो टू क्लस्टर, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है गो टू एडवांस ऑप्शंस. ओके, अभी मैंने देखो तुमको कुछ चीजें इंस्टॉल करके दिखाया, जैसे कि हाइव, पिग, स्कूप, isn't it? Now the question is, I am clicking here and I want to install, say for an example, Taze. I want to install Uzi, Spark, Presto, HBase, Zeppelin, Levi, Flink, Zookeeper, Scoop, Hcatalog, Phoenix. What do you call this? Just click of a button. Just click of a button. देखा तुमने? तो प्रोडक्शन देखा जाए तो ज्यादा इजी हुआ, लेकिन इंटरव्यूअर कभी ये नहीं पूछेगा क्लिक कैसा करते. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट.
they are interested in something else, isn't it? तो वो हमको सीखना पड़ता है. अदरवाइज EMR अगर इसको सक्सेसफुल हो गया होता ये बहुत ज्यादा, ओके, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में काम कम हो जाता था, तो हमारे भी जॉब जाते थे. तो ये देखो, ये एंटरप्राइज कंपनी अमेजॉन, उन लोगों ने हडूप जैसी चीज को एकदम आसान करके दिया है कंपनीज को. क्रिएट क्लस्टर इज पीस ऑफ अ केक, बट दिस केक everybody doesn't get. Only people, those who have worked really hard on CLI, they get this cake. Getting the point? ठीक है, तो अब मुझको टर्मिनेट नहीं करना है क्योंकि इसने ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर दिया है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. Getting the point? The only difference is this is all terminated with errors and this is terminated with success, which hardly took 4 minutes. So I'm going to pay, okay, only for the time I have used. तो ये less than 1 minute है ना, इसका मेरे को चार्ज नहीं आएगा. ये 4 मिनट का जो चार्ज है ना, बस इतना ही भरना है मुझको, 4 minutes. ठीक है, सो याद रखना ये प्रोडक्शन ग्रेड है, एंटरप्राइज ग्रेड नहीं है. ओके, so wish you all the best and take care, but this is a platform as a service. We'll do the rest on next Saturday.